Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों पर नजर डालते हैं, साथ ही हम बात करते हैं पूरे दुनिया के स्टॉक मार्केट्स के बारे में कि वहां क्या कुछ चल रहा है, और खबरों की बारीकियों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपलब्ध मेहमान हैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट जयंत दास। जयंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट मंत्र में। वार्म वेलकम जयंत। थैंक यू वेरी मच राजेश। शुरू करते हैं मार्केट मंत्र। सबसे पहले हेडलाइंस इंग्लिश में। Global markets in Asia, Europe and America rise while domestic equity and financial markets remain closed on account of Ram Navami. And government exempts basic custom duty on drugs and food specially imported to treat rare diseases. एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में तेजी का रुख। भारतीय शेयर बाजार आज छुट्टी की वजह से बंद रहे। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में आज तेजी का रुख है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार रामनवमी की वजह से बंद हैं। बीएसई और एनएसई में आज छुट्टी की वजह से कोई कारोबार नहीं हुआ। तो हम एक नजर डालते हैं कि एशियाई बाजारों में आज क्या रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% चढ़ा। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.6% की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी भी 0.4% बढ़ा है, लेकिन जापान के निकेई सूचकांक में 0.4% की ही गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स भी मामूली 0.2% गिरा है। लेकिन यूरोपीय बाजारों में लगभग सभी बाजार तेजी के साथ काम कर रहे हैं। दिन के कारोबार के समय सब में बढ़त बनी हुई है। लंदन का FTSE 100 0.9% की तेजी पर कारोबार कर रहा है, जबकि जर्मनी के डैक्स में 1.3% और फ्रांस के CAC 40 में 1.4% की तेजी बनी हुई है। इस पर जयंत से बात करेंगे थोड़ा इक्विटी बाजार पे। जयंत, अगर आप देखें आज इंडियन स्टॉक मार्केट तो काम बंद रहा, लेकिन जो हमने बात की अभी एशियाई और यूरोपीय बाजारों के बारे में, साथ ही यूएस के मार्केट का क्या हाल है ये सुन लेते हैं, फिर इस पे आपकी टिप्पणी कि क्या अब आने वाले समय में थोड़े दिन बाजार में तेजी रहेगी क्या, ये सवाल है। लेकिन पहले यूएस मार्केट देख लेते हैं। US stocks rallied yesterday with all the three major indices ending up at least 1% as upbeat corporate outlooks eased some worries about the health of the economy. The Dow Jones Industrial Average rose 323 points or 1% to 32,718. The S&P 500 gained 56 points or 1.4% to 4,028. The S&P 500 also closed above its 50-day moving average for the first time since March 6, before the onset of the banking crisis. And the Nasdaq Composite added 210 points or 1.8% to 11,926. Micron shares shot up 7.2%, boosting the Nasdaq and S&P 500. The memory chip maker gave a rosy outlook for 2025 with artificial intelligence boosting the sales. Adding to the optimism, Lululemon Athletica jumped 12.7% after an upbeat annual results forecast. The banking turmoil, which started earlier in March with the collapse of Silicon Valley Bank, caused a swift sell-off in the sector shares and fueled jitters about the strength of the economy. Meanwhile, the domestic stocks and financial markets, as we reported earlier, were closed today on account of holiday due to Ram Navami. Yesterday, the Indian benchmark indices gained more than 0.5% following strong global cues. The Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 346 points
or 0.6% to close at 57,960 yesterday. The Nifty gained 129 points or 0.8% at 17,081. At the forex market, the rupee closed at 82 rupees and 34 paise against the US dollar yesterday. Jayanto, are the domestic markets heading towards normalcy after the global shocks? No, I think that's jumping to a conclusion a bit earlier than what's expected. Overall, what I do believe is, while the census is at around 57,000-58,000 levels from this point, there are further rate hikes expected in the month of April, and I think that's going to take a toll. Of course, with this deep dive with the market witness, there would be some profit booking, there would be some value hunting. So those are being witnessed right now, not only in India but globally. But since Harsh also asked me to link it to the US market, I think I also have a different take on the coming 3 months globally of how it's going to affect our investment portfolio at this point of time. My first take is the following. See, people at somehow, or rather markets somehow believe that the SBB issue is now almost a forgotten issue, and I think it's too fast a conclusion which most of the international markets are deriving from here. Credit Suisse, we saw what happened and it had to be taken over by UBS as a desperate bid. But we also, what we are missing out is around a couple of days ago, France is considering of penalizing two major banks in France of over $1 billion in terms of fines because of transparency issues. So I fear they might be having some ripple effects out there in the European markets for the time being. But on the whole, what I do believe is at this point of time, it's certainly not a cause for celebration of where the markets are poised as of today and Thursday, both Indian markets as well as global markets. We do have tough times to look forward to. बिल्कुल जयंत, आपने सही कहा कि अभी कोई ऐसी सेलिब्रेशन की बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक ट्रेंड हम देख सकते हैं कि जो एक बाजार में गिरावट थी, हो सकता है कि आने वाले वीक में, आने वाले 2-4 हफ्तों में, महीने में ये ग्लोबल क्लूज को देखते हुए थोड़ा सा स्ट्रांग हो। और खास करके अगर सेक्टर्स की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर या एफएमसीजी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में हम थोड़ा सा जो आम निवेशक हैं वो अपना निवेश जारी रख सकते हैं, अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव में उनको घबराकर मतलब प्रॉफिट या लॉस बुक करने की अभी आवश्यकता नहीं है। आपका क्या सुझाव होगा? देखिए, घरेलू बाजार में खास करके 3 क्षेत्रों में मानता हूँ इस वक्त भी काफी अच्छा है वैल्यूएशन के हिसाब से, और खास करके अगर आपका 3 साल से 5 साल का अवधि है निवेशों का तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बैंकिंग में इस वक्त प्रवेश करें। हालांकि सबको पता है कि सरकारी बैंकों ने कुछ ज्यादा गिरावट आया है हाल ही में, लेकिन उसका वैल्यूएशन अभी भी काफी लाभजनक है। और ऐसा स्थिति में नॉट ओनली सरकारी बैंक, जो निजी बैंक है, जो 3-4 सबसे बड़ी निजी बैंक जो इस क्षेत्र में है और उनमें से 2 बैंक सेंसेक्स में भी है, उसमें अगर आप प्रवेश करें तो उसमें भी काफी अच्छा स्तर इस वक्त आपको मिल सकता है। हालांकि थोड़ा बहुत नरमी अभी भी मार्केट में जरूर बेशक होगा और आगे 2-3 महीने में, इसलिए मैंने बोला 3 से 5 साल का अवधि लेके अगर आप निवेश करेंगे, निर्णय लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी रहा कि बुनियादी ढांचागत जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, मैं मानता हूँ वन ऑफ द सेक्टर्स जिसका रिटर्न उतना फैंसी अगर ना भी हो, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्टर, क्योंकि हम सबको पता है कि सरकार का दौरा, खासकर की इस सरकार का द्वारा पिछले 7-8 साल से लगातार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करके, चाहे सड़कें हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे एनर्जी स्टेशन को क्रिएट किया जा रहा है, तो इसमें लगातार जो डिमांड हो बने रहेंगे। और नॉट ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का साथ जुड़े हो जो एंसिलरी सपोर्ट सेक्टर है, उसमें भी काफी अच्छा अगर आप स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो काफी अच्छा उनका भी मैं मानता हूँ मजबूती रहेगी। ये 2 क्षेत्र विशेष में बेशक। हाँ, दूसरी बात यह है कि आईटी क्षेत्र के बारे में भी बात बीच बीच में हो रहा था कि आईटी स्टॉक्स में काफी गिरावट आया है, क्या वैल्यूएशन इस वक्त काफी अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो मैं मानता हूँ कि आईटी सेक्टर में थोड़ा सा ध्यान से आप प्रवेश करिएगा इस वक्त। एज अ इंडस्ट्री में मानता हूँ इसका ओवरऑल जो हॉराइजन अगर आप देखें अगले 2 साल के दौरान बेशक अच्छा रहेंगे, लेकिन फिर से मैं इसको कहीं न कहीं से जोड़ना चाहूंगा विश्व भर में जो अनिश्चयता है विदेशी बाजारों में, उसके साथ आईटी सेक्टर का भी कहीं न कहीं बहुत एक लिंक रहेगा। और उस वक्त वजह से थोड़ा वोलेटिलिटी हम ज्यादा देख सकते हैं। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि नवंबर से लेके करीबन फरवरी-मार्च तक आईटी सेक्टर में काफी हद तक जॉब कट देखा गया है, और वो जॉब कट हमारा देश में भी हुआ है। तो कहीं न कहीं मार्केट को संकेत बेशक देता है कि अगले 1 साल 2 साल में
किस हद तक इफ नॉट डिमांड ग्रोथ ना हो लेकिन एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कटिंग इस क्षेत्र में बेशक न्यूज में लगातार आते रहेंगे और इट्स नॉट अ स्टोरी टू बी फॉरगॉटन वेरी सून क्योंकि जब से आईटी सेक्टर पिछले 25 साल का हिस्ट्री देखे पिछले 6 महीने में जिस तरह का कटिंग ऑफ हुआ है लेबर फोर्स में आईटी सेक्टर में आई थिंक इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट चंक एवर टू हैपन। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था आईटी सेक्टर में और ये लगातार जारी है इसलिए उस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अभी भी किसी न किसी आशंका से ग्रस्त जरूर हैं। थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी इस सेक्टर में। So Jentu, you talked about volatility and Harsh is also talking about volatility in the IT sector. Is this volatility expected to continue until the global banking system gets fully recovered from the turmoil and also along with the confirmation of the Fed's decision to pause rate hikes? Till then, it will be status quo? Yeah, obviously, and I guess Jerome Powell nowhere is even speaking of a pause. He's still speaking of how fast he would like to go in with the rate hike. And we all know SVB Bank has been, victim is the wrong word, but I'll still use it in because I don't have a better word immediately in my mind, has been a victim of this rate hike continuously. I mean, their assets were fine. I mean, they had assets plans in government securities. The only thing is they couldn't sell off those assets to book their losses, to pay off the depositors. So that's an issue. And as I said, right now, at this point of time, every 50 basis point rate hike or even a 25 basis point rate hike by the Fed would create a huge amount of pain than what it was around 6 to 8 months ago. Because typically, the initial rate hikes do come as a shocker and people and industry and economy tries to readjust to the rate hikes on the whole. But when it comes at a higher level and when people expect it to slow down and if it doesn't slow down, then every 25 to 50 basis point increase also creates a much more bigger problem. Because as we say it in a very, very, local lingo, where you say that when you're taken to the edge, then you know how deep it is to fall below, rather than knowing about the depth from behind, So that's the state most of the financial sector are in. And as I said, the SVB fallout, and of course following with that, there were 2 more major bank fallouts also in the US. But somehow, there are more tumblings to happen. बिल्कुल। और जयंत, जो आप बता रहे हैं कि एसबीबी बैंक की हालत जो इतनी अचानक से खराब हुई, इसमें रेट हाइक यूएस फेड द्वारा जो हुआ वो एक बहुत प्रमुख वजह रही। यहाँ पर हम जरूर आरबीआई की तारीफ करना चाहेंगे क्योंकि यही स्थिति भारत में भी थी, जबकि महंगाई काफी बढ़ी हुई थी और रेट हाइक करना बिल्कुल जरूरी हो गया था। लेकिन रिजर्व बैंक ने किस पेशेंस के साथ दोनों को एक बैलेंस करते हुए जितनी जरूरत हो बिल्कुल बिना हड़बड़ी दिखाए आराम के साथ धीमे धीमे इसे हाइक किया। आप इसे कैसे देखेंगे? क्योंकि लगातार आरबीआई की दुनिया में तारीफ हो रही है कि महंगाई भी काबू किया, रेट हाइक भी किया और बैंकों को भी सुरक्षित रखने में आरबीआई एक बहुत ठोस शील्ड का काम कर रहा है। देखिए, आरबीआई एज अ सेंट्रल बैंकर मैं मानता हूं कि 2 तरफ से अगर आप देखें चीजें इसमें, एक तो ये है कि लोग काफी हद तक बोलते हैं कि आजकल नॉट ओनली आरबीआई, दुनिया भर में जितना सेंट्रल बैंक है, दे हैव बिकम अ मिरर इमेज ऑफ व्हाट फेड इज डूइंग, राइट? अगर फेडरल बैंक में रेट हाइक हो रहा है तो दुनिया भर में हर जगह में हो रहा है। इसमें कोई अलग की बात नहीं, इसमें कोई निंदनीय बात भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल जो आरबीआई ने निभाया, नॉट ओनली पिछले 2 साल बट कोविड के दौरान, वो ये है कि बैंकिंग गवर्नेंस में जिस तरह से आरबीआई का फोकस रहा और जिस तरह से बैंक को रेगुलेट करते हुए, एक तो कोविड का जो दौर है उसको कहीं ना कहीं से आरबीआई ने पार करवाया। उसके बाद जो इन्फ्लेशन का दौर आया है उसके ऊपर भी, जैसे आपने कहा कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, एक हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी के साथ एक बहुत ही शुड आई से ग्राउंडेड एंड फोकस्ड मैनर में बैंक को रेगुलेट करके, बैंक का गवर्नेंस को रेगुलेट करके संभालते हुए, इस वक्त ये जरूर है कि हम लोग एटलीस्ट इन इंडिया, मैं मानता हूं कि चाहे निजी बैंक हो या चाहे कोई पीएसयू बैंक हो, इस वक्त कोई अलग से भय नहीं है भारतीय उपभोक्ता के अंदर कि भाई कल का दिन में हमारे ये बैंक बंद हो सकता है। तो ये मैं मानता हूँ एक प्रूडेंट पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ बैंक, जहाँ पे पूरा क्रेडिट हम आरबीआई जो मेन बैंकिंग रेगुलेटर है उसको देते हैं। So, Jetu, are the investors now encouraged by the lower volatility in the bond market? Well, I would say encourage is the wrong word, but then as I said, it all depends on where your investment appetites are and for how long. We have been speaking, for example, on gold in this program for the last 8 months.
ever since gold started kicking off from 44,000 levels, if you remember, Rajesh. Yeah. And obviously it went up above 55,000 or not. So it keeps on switching. And in fact, I read a report today where now most of the international advisors in investment are telling you should have at least 15% of your portfolio in gold. But if you look at the performance of gold, and there's a natural comparison which we always do amongst our peers, amongst our colleagues, or even amongst our family when we say the returns of gold versus the returns of stock market, for example. If you start from the base year of stock market, which is taken as 1979, the stock market, gained around 609 times approximately, 607 to 609 times, whereas gold gained only 59 times. So obviously your stock market returns are phenomenal if you compare them from 1979 compared to gold. Now, if you compare the gold and stock market growth in the last 20 years, they have been almost neck to neck. So obviously on a matured economy, where people have been investing more, where people have been much more aware and all, the gold and the stock market returns have been running neck to neck over the last 20 years. So what we have to understand is where you want to put gold in part of your portfolio, what are the investment risks. Similarly, coming back to your old question of bonds, it all depends on how much risk appetite you would like to have to place your overall investment portfolio in bonds. So those things are a call which an individual investor has to take, and they keep on fluctuating and changing based on how global markets and how domestic markets are reacting from time to time. So just from the investor's point of view, as the mini bank crisis recedes a bit, should the equity investors look to what was oversold in the last few weeks? Well, see, that's, I believe, a very macabre way of approaching the industry. I would always advise retail investors. Why do you call it macabre? The reason why I call it macabre is because your investment decision should not be on what is cheap or what is expensive or what is a low-hanging fruit. Yeah. Your investment decision should be completely based on, once again, your appetite of investment, what you have, and it should be based strictly on valuation. I can name at least 15 stocks right away, which have fallen deeply, and people would find them very good picks, but they'll never come up in the next 2 years. And they're good stocks, So that's what I said. Don't judge stocks with how much they have fallen and whether they are a good right to pick up. Judge stocks with their valuation in the market at this point of time, and also additionally what they look forward to in terms of sectorally in the next 3 years. जी जयंतो और one should not just pick up low-hanging fruits in that sense. डेफिनेटली। और जयंतो अब देख लेते हैं कुछ और बड़ी खबरें आज क्या हैं अर्थव्यवस्था के फ्रंट पर। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिजुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान कर दी है। इन दवाओं पर सामान्यतः 10% की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्क की रियायती दर 5% या 0 है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार को दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इन पर सीमा शुल्क में रियायत की मांग संबंधी कई अभ्यावेदन मिले हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस छूट से इन दवाओं के आयात पर लागत कम होगी और मरीजों को राहत मिलेगी। And also the Defense Minister Rajnath Singh has said that India is poised to achieve defense equipment exports target worth 40,000 crore rupees by 2026. He said defense exports have witnessed a quantum jump in the last few years, and from 900 crore rupees in 7 to 8 years ago, defense exports have now reached to 14,000 crore rupees. The minister stated this while addressing the Rising India conclave in New Delhi today. Jento, quickly your views on the defense sector. Could you repeat the question, Rajesh? What is your view on the role or the future of the defense sector? In terms of exports or in terms of local production? Both. Okay. See, typically there has been a huge tectonic change in terms of policy, as we are all aware, in the last 2-3 years in the defense production side.
and it has been a conscious call of this government policy-wise to make India a hub in terms of defense production across ancillary industries. We have an edge, I must say, given our huge network in terms of not only auto but also related industries, which as a as an ecosystem that has already been there. What we lacked was a very vibrant policy to spearhead. I do believe strongly that there is a huge market which India would like to cater to, specifically in the defense sector, and some of the markets typically in Africa and Latin America and parts of Southeast Asia, let's not forget, are markets which are very lucrative markets for India to attend. जब तो देखें, यहाँ एक खास जो नोट करने वाली बात है कि अब तक कुछ दशकों पहले तक, कुछ सालों पहले तक, जहां हम डिफेंस प्रोडक्ट्स को लेकर दूसरे देशों पर निर्भर थे, वहां से हमें आयात करना पड़ता था। आज हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम उतना ही नहीं कर रहे हैं, हम रॉकेट भी दूसरे देशों का छोड़ रहे हैं अंतरिक्ष में। तो ये दो चीजों से जिस तरीके से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, ये बहुत बड़ा देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूटर साबित हो रहा है। देखिए, नीतिगत रूप में वाई डिफेंस, अगर आप एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें, पिछले साल को वी हैड वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ एरियाज एवर इन एक्सपोर्ट इन वन ऑफ द क्वार्टर्स। सो व्हाट आई बिलीव इज, बेशक आपका बात सही है कि इन टर्म्स ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स, एंड इट्स अ ट्रेडिशनल आर्गुमेंट ऑलवेज कि एक्सपोर्ट्स हेल्प इन टर्म्स ऑफ बूस्टिंग ऑफ द ट्रेडिशनल अर्निंग्स, बट आई ऑल्सो हैव अ एडिशनल सप्लीमेंट्री थॉट ओवर हियर, एंड दैट इज आजकल पिछले 2-4-6 महीने में, खास करके जब से यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ है, खास करके मैं मानता हूँ शायद 1 साल होने वाला है। 1 साल हो गया। हाँ जी। हाँ, तो उसमें ये है कि इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट और इंडिया के इंपोर्ट बास्केट अब रूपी में भी धीरे धीरे करीबन 18 देश में ऑलरेडी अनुमति भी मिला हुआ है, जहां पे रूपी में ट्रेडिंग हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये 2022 के आर्थिक फ्रंट पे देखें तो ये भारत सरकार का एक बड़ा फैसला था कि जो इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट होगा कई देशों के साथ जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसमें रूपी में ट्रेड सेटलमेंट होगा। और इस सिलसिले में मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, इसलिए बिकॉज हम करीबन हर्षर आप और हम करीबन 20 साल से इस प्रोग्राम कर रहे हैं, राजेश भी हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं। हम लोग हमेशा फॉरेक्स अर्निंग्स थ्रू डॉलर्स के बात कर रहे हैं। आई थिंक अब समय वो आ गया कि अगले 2-3-4 साल के अंदर शायद हम रूपी का एक प्रभाव धीरे धीरे विदेशी बाजारों में जो होने वाला प्रतिरोध प्रभाव, उसका भी हम शायद साथ में बात करेंगे। ये बहुत ही वेलकमिंग फोकस है। एक दो और खबरों पर रुख कर लें हम। सरकार तुअर दालों की कीमतों को सामान्य रखने के लिए चक्की वालों, थोक विक्रेताओं, व्यापारियों और आयातकों द्वारा दालों के भंडार को खोलने संबंधी निगरानी करने के अपने प्रयासों को बढ़ा दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने मुख्य दाल आयातकों को निर्देश दिया है कि वे उपलब्ध सभी भंडारों की नियमित और पारदर्शी तरीके से घोषणा करें। उन्हें किसी भी भंडार पर नियंत्रण नहीं रखने की सलाह दी गई है। इस नियंत्रण से घरेलू बाजारों में दालों की उपलब्धता बाधित हो सकती है। विभाग उपभोक्ताओं के लिए दालों की वहनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कीमतों को लेकर सभी हितधारकों के साथ परस्पर बातचीत करने की भी योजना बना रहा है। दाल संगठन और आयातकों ने पारदर्शी तरीके से भंडारों के बारे में बताने को लेकर पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन भी दिया है। अपर सचिव निधि खरे की अध्यक्षता वाली समिति ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक बैठक की। इस बैठक के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से FSSAI के लाइसेंस धारकों, कृषि उत्पाद विपणन समिति में पंजीकृत और GST पंजीकृत दाल के व्यापारियों सहित भंडार घोषणा पोर्टल में पंजीकृत व्यापारियों की संख्या बढ़ाने के लिए सभी सूत्रों को तलाशने का भी आग्रह किया गया है। और ये एक अच्छी खबर है, जिससे कि दाल की जो कभी कभी थोड़ी सी उपलब्धता कम हो जाती है, वो लगातार जारी रहेगी। और साथ ही एक और बड़ी खबर है कि कृषि निर्यात में अप्रैल 2022 से जनवरी 2023 की पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान कृषि निर्यात $43 बिलियन से अधिक का रहा। वाणिज्य तथा उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कल लोकसभा में एक लिखित उत्तर में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि कृषि निर्यातों में वृद्धि किसानों की आय पर एक सकारात्मक असर डालती है। निर्यात से किसानों को होने वाले लाभ को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक फार्मर कंटेंट पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल निर्यातकों से सीधे जोड़ने के लिए किसान उत्पादक संगठन और सहकारी समितियों को एक मंच प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य और जिला स्तर पर कई कदम
बढ़ाए हैं। और यहां पर थोड़ी सी बातचीत कृषि उत्पादों को लेकर मैं जयंत अपने एक्सपर्ट से ये जरूर करना चाहूंगा कि इस साल जिस तरीके से जयंत हम मोटे अनाजों को लेकर, मिलेट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मना रहे हैं और जिस तरह भारत इसमें लीड कर रहा है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है दुनिया में भारत मोटे अनाजों का, और इसकी जो प्रोसेस्ड फूड पे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था को एक गति दे रहा है। देखिए हर्ष, मैं मानता हूं कि ग्रीन रेवोल्यूशन लेट 60s में, उसके बाद व्हाइट रेवोल्यूशन लेट 70s में, ये दोनों रेवोल्यूशन का बाद मिलेट रेवोल्यूशन का शायद हम एक बहुत बड़ा ईरा और बहुत ही महत्वपूर्ण ईरा हम एंटर करने वाले हैं, प्रवेश करने वाले हैं। और हम सबको पता है कि मिलेट प्रोडक्शन हमारा भारतीय एग्रीकल्चर बास्केट में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। और इस तरह का ग्लोबल दर्जा में अगर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी पहुंचे, और जैसे आपने सही कहा कि इंडिया इज ऑलरेडी प्लेइंग अ लीड रोल, तो आने वाले 2-3 साल में ये जो रेवोल्यूशन है एक इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करेगा मिलेट हम लोग का जिंदगी में, हम लोग का फूड बास्केट में, और हमारा ओवरऑल इंडियन का डेमोग्राफिक डाइट चार्ट में। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि होगा। और मैं मानता हूं कि सही रूप से सरकार का नीतिगत रूप से जो प्रयास चल रहा है कि किसी न किसी तरह से इसको सार्थक रूप से सपोर्ट करे, तो वो भी बहुत बड़ा उम्मीदों की तरह आगे बढ़ते रहेंगे। Moving on, the global crude oil prices rose today as a surprise drop in U.S. crude stockpiles and a halt in exports from Iraq's Kurdistan region offset a smaller than expected cut to Russian supplies. Brent crude futures rose 40 cents to $78.68 a barrel, while the U.S. crude rose 52 cents or 0.7% to $73.49 a barrel. U.S. crude oil stockpiles fell unexpectedly in the week to March 24 to a 2-year low, the Energy Information Administration said on Wednesday. Further support came as exports from Iraq's northern region remained halted. Producers have shut in or reduced output at several oil fields in the semi-autonomous Kurdistan region of northern Iraq, following a halt in the northern export pipeline, with more outages on the horizon, company statements said. Jayento, this rate of $78.68 is how comfortable for India? Well, I don't think we should be utterly worried on the price of oil, because as I said earlier, and in fact today's rise has been basically because of a supply side rather than a demand side increase. There's a supply side bottleneck because, as you read, the Kurdish oil which has been used from a pass through from northern Iraq, they have to now go through a permission from Baghdad. As a result of which, there's been a supply side cut. What I am a tad surprised is the stockpile fall in U.S. crude. Right. I think partly is because of the late onslaught of winter over there, for which we saw demand. But overall, I think today's price rise has been more led by a supply side bottleneck rather than anything to do with demand. And as I said, if we look forward for the next 6 to 9 months, I don't see any immediate demand trigger to see a runaway, chase of oil prices from these $78 levels. And how much role would the OPEC's decision to cut oil production do? Very briefly. Well, I don't think they would be having a critical role. They might call for cuts, obviously, because they would like prices to go up from here. But they're looking ahead for a very bleak 6 to 9 months in terms of demand growth. So I think it's who bats the eyelid first sort of a situation for OPEC also. आज के लिए मार्केट मंत्रा में बस इतना ही। जयंतो, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you for being with us, Jayento. And before we close, the headlines once again. Global markets in Asia, Europe and America rise while domestic equity and financial markets remain closed on account of Ram Navami. And government exempts basic customs duty on drugs and food, specially imported to treat rare diseases. एशियाई, यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में तेजी का रुख। भारतीय शेयर बाजार आज छुट्टी की वजह से बंद रहे। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान कर दी है। आज के मार्केट मंत्रा में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।